اس نے بچے کو دیکھا، کہا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ کہا یہ بتائے اس کو چھوڑ کے کہاں آیا تھا؟ اسے چھوڑا کہا تھا، یہ سارا مٹی میں ہو رہا۔ اس نے کہا یہ بات میں بتاؤں گا، پہلے بتائیے آیا کہاں سے؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک سوار آیا تھا، اس نے یہ بچہ مجھے دیا اور کہا اپنے شوہر سے کہہ دیجو ہم جو چیز دے دیں وہ واپس نہیں لیا کرتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلا ہے۔ ہاں جوان بیٹے والے باپو اور محترم ماؤں، خدا تمہیں تمہارے جوان کا چہرہ دکھائے۔ جس سال علی اکبر پیدا ہوئے اسی سال شاہ حلب کے ہاں بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس نے حسین کو مبارکبادی کا خط لکھا کہ فرزند رسول، تیرے گھر میں ایک چھوٹا سا رسول مبارک ہو، تیرے رسول کی صورت محمد کی صورت جیسی۔ حسین میرے ہاں بھی ایک بیٹی ہوئی، تیرے بیٹے سے میری بیٹی کا کوئی مقابلہ نہیں، مگر چاہتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہوگی اگر تو اپنے بیٹے کی کنیزی میں میری بیٹی کو قبول کر لے۔ حسین نے خط پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قاصد نے کہا مولا کیا کوئی غلط بات لکھی؟ کہا نہیں، محبت لکھی۔ تو جواب لکھو۔ جواب لکھوایا، کہا شاہ حلب تیرا شکریہ، تو نے ہمیں مبارکباد دی۔ ہم نے آج تک اپنے دروازے سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، ہمیں تیری پیشکش قبول ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ ہم علی اکبر کی شادی اس وقت کریں گے جب اکبر 18 سال کا ہو جائے۔ سلامت رہیے، خدا آپ کو آپ کے جوانوں کے چہرے دکھائے۔ قاصد خط لے کے پہنچا، شاہ حلب نے پڑھا، آنکھوں سے لگایا، قرآن کے نیچے رکھ دیا۔ اب روزانہ لیاقت بھائی قرآن پڑھتا تھا، خط کھول کے دیکھتا تھا، دن گنتا تھا۔ علی اکبر کے 18 سال کے ہونے میں اتنے دن رہ گئے، علی اکبر کے 18 سال کے ہونے میں اتنے دن ہو گئے۔ یا نوجوانوں، ایک دن جب اس نے خط نکالا تو علی اکبر 18 سال کے ہو گئے تھے۔ قاصد سے کہا دوڑ کے جا اور مدینے جا کے حسین کو اس کا وعدہ یاد دلا۔ قاصد آیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں گیا تھا مدینے، بنی ہاشم کا محلہ ویران پڑا ہوا، میں نے لوگوں سے پوچھا حسین کہاں ہے، تو کہا کربلا چلے گئے۔ شاہ حلب نے کہا تو گھر میں بیٹھ، زوجہ سے کہا ہم کربلا چلتے ہیں، حسین سے بات کر۔ دونوں کربلا آئے۔ ماتمیوں، گردش ایام کہ جس دن شاہ حلب اور اس کی زوجہ کربلا پہنچی اسی دن زینب قید نبھا کے کربلا آئی تھی۔ سلامت رہیے، خدا رحمت نازل فرمائے بلند ہوتی ہونے والی آوازوں پر۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کچھ بے نام و نشان قبریں تھیں، کہ یہاں حسین کہاں ٹھہرے ہوں گے۔ یا ایک قبر پہ دیکھا ایک بی بی ہے جو بڑا تڑپ کے رو رہی۔ شاہ حلب نے اپنی زوجہ سے کہا جا کے اس سے پوچھ، اسے پتا ہوگا حسین کہاں ٹھہرے۔ وہ آئی آ کے اس قبر کے پاس، جو بی بی رو رہی تھی اسے سلام کیا۔ جیسے ہی سلام کیا اس بی بی نے غور سے دیکھا۔ اس نے کہا بی بی غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ سننا غیرت مندو، کہا اتنا غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا غور سے دیکھ رہی ہوں کافی عرصے کے بعد زینب کو کسی نے سلام کیا۔ کافی عرصے کے بعد زینب کو کسی نے سلام کیا۔ کبھی بھی کون؟ اس نے خط آگے کیا، بہن نے بھائی کی تحریر کو پہچانا، آنکھوں سے لگایا۔ کبھی بھی کیا ہے؟ کہ حسین نے وعدہ کیا تھا علی اکبر 18 سال کا ہو جائے گا تو ہماری بیٹی سے اس کی شادی کر دے۔ حسین سے ملنے آئے، زینب کھڑی ہوئی۔ کبھی بھی جس حسین سے ملنے آئی ہے یہ اسی حسین کی قبر ہے۔ اسے کبھی بھی کیا ہوا؟ کہ میرا حسین مارا گیا۔ کہ میری ماں ایک دفعہ اس نے کہہ دیا کہ بی بی علی اکبر سے تو ملا دو۔ شاید باپ نے بیٹے کو کچھ وصیتیں کی ہو۔ زینب نے ہاتھ پکڑا، قبر علی اکبر پہ لائی، ایک جملہ کہا علی اکبر اٹھو، تمہارے رشتے کے لیے لوگ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے کسی اور غم میں نہ رلا۔ آؤ میں فروا کو پرسا دیں،
2.5 बरस के थे कासिम जब उम्मत ने हसन को जहर दे दिया। अपने हुजरे में आए, उम्मे फरवा ने कहा मौला खैरियत तो है? कहा उम्मत ने जहर दे दिया। मौला अली की बेटियों को इत्तला करे? कहाँ भेजूं? कहा मौला मैं चली जाऊं? कहा नहीं कासिम को भेज दो। कहा मौला 2.5 बरस का कासिम क्या बताएगा? कैसे बताने की नौबत नहीं आएगी। कासिम को करीब बुलाया, अमामा उतारा, गिरेबान चाक किया, थोड़ी सी मिट्टी उठा के कासिम के सर पे डाली और कहा कासिम फूफी के सामने जाके खड़े हो जाना, मेरी मौलिमा बहन को बताने की जरूरत नहीं। जब कासिम जाने लगे तो एक मर्तबा हसन ने कहा कासिम तहज्जुद का वक्त है, हो सकता है फूफी सो रही हो, अभी तहज्जुद के लिए उठेगी तब चले जाना, फूफी को सोते से उठाना नहीं। औलाद वालों 2.5 बरस की उम्र होती क्या है। जब कासिम ज़ैनब के हुजरे के पास आए, हुजरे का दरवाजा बंद था, कासिम दरवाजे से टेक लगा के बैठ गए। 2.5 बरस के बच्चे को नींद आ गई। जब ज़ैनब तहज्जुद के लिए उठी और हुजरे का दरवाजा खोला, एक सर ज़ैनब के कदमों में आके गिरा। आवाज दी फिजा जल्दी से चिराग लाओ, ऐसा लगता है कोई यतीम रास्ता भूल गया। ऐसा लगता है कोई यतीम रास्ता भूल के आ गया। फिर चिराग लेकर आई, बच्चे को गोद में लिया, सर की चादर उतारी, कहा शहजादी कोई यतीम नहीं है, हसन की निशानी कासिम। ज़ैनब दौड़ती हुई कासिम के हुजरे में आई। मेरे मौला का आखिरी वक्त, बहुत सी वसीयतें की। नौजवानों एक वसीयत सुनो। हुसैन से कहा हुसैन मेरा कासिम बहुत छोटा है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि जब भी अली अकबर के लिए पोशाक सिलवाए तो मेरे कासिम की भी सिलवाई हो, लेकिन हुसैन एक वादा कर, जो पोशाक अली अकबर के छोटी हो जाए वो मेरे कासिम को पहना दीजिए। खुदा आपको सलामत रखे, सिवाय गम हुसैन के किसी और गम में न रुला है। आज़ीज़ान मोहतरम आपने गिरिया किया, आइए ज़ियारतों को बरामद करवाएं। यहाँ का दस्तूर ये रहा कि जब मसाइब में ज़ियारतें आती हैं, उससे पहले कुछ छोटी छोटी बच्चियां हाथों में कूजे लेके आती हैं। ये एक बच्ची को पुरसा देने आती हैं, जिसे शबे आशूर तक ये मालूम ही नहीं था कि यतीम किसे कहते हैं। मेरी खिताबत न समझिएगा। जब आखिरी मर्तबा हुसैन शबे आशूर खेमे में आए, बीबियों से गुफ्तगू की, ज़ैनब जरा सकीना को तो लाना। सकीना को सीने पे सुलाया। बातों बातों में कायनात के इमाम ने कहा सकीना कल से तुम अपनी माँ के पास सोना। कहा बाबा माँ के पास तो अली असगर सोते हैं। कहा नहीं, कल से अली असगर हमारे पास सोएंगे। बच्ची ने कहा बाबा आज आप ये बातें कैसी कर रहे हैं? तो हुसैन ने कह दिया हाँ सकीना कल तुम यतीम हो जाओगी। जैसे ही हुसैन ने कहा कल तुम यतीम हो जाओगी, बच्ची ने गर्दन उठाई। कहा बाबा यतीम किसे कहते हैं? हुसैन ने कहा सकीना कल असर के बाद मालूम हो जाएगा। सुनेंगे साहिब मसाइबुल अखियार के जुमले। शाम गरीबा जब पहला तमाचा सकीना के रुखसार पे पड़ा, मक्तल की तरफ रुख किया, कहा बाबा का यतीम इसी को कहते हैं। बाबा का यतीम इसी का नाम। अभी ये बच्ची आपके सामने कूजे लेकर आएंगी। आइए पहले इन बच्चियों के लिए दुआ करें, खुदा इनका नसीब अच्छा करे। खुदा इन बच्चियों को इस नन्ही सी उम्र में यतीम न करे। खुदा आपको सलामत रखे, सिवाय गम हुसैन के किसी और गम में न रुलाए। ये बच्चियां कूदा लेके आपके सामने आई, आप गिरिया कर रहे हैं। सलाम कीजिए सैयद सज्जाद को कि सकीना सामने प्यासी भी थी मगर रोने की इजाजत भी नहीं। मौला आपको सलामत रखे। एक रिवायत सुन लीजिए ताकि ये मंजर आपकी समझ में आ जाए। जब अब्बास दरिया पर मशकीदा भरने गए, सकीना इसी तरह सारे बच्चों को इकट्ठा करके हाथों में कूजे लेके खेमे में जमा हो गई। जैसे जैसे आलम करीब आता रहा, सकीना बच्चों को दिलासे देती रही, देखो चचा का आलम आ रहा, देखो चचा का आलम आ रहा, सबको पानी पिलाऊंगी। या करबला में एक मरतबा आलम डगमगाया, आलम का डगमगाना था या बच्चों के हाथ में कूजे डगमगाए। आलम जमीन पर आया, कूजे जमीन पर गिरे, अब्बास इस दुनिया से चले गए। अली अकबर ने आलम उठाया, लेके खेमे में आए। सकीना ने एक मरतबा आलम को देखा, फिर अलमदार को देखा, कसम खुदा की किसी से कुछ नहीं कहा, दौड़ के गई, चची के पैर पकड़े, कहा चची सकीना को माफ कर देना,
अगर मैं पाकिस्तान में कहती तुम्हारा स्वाग हो जाता, अगर मैं जदा से पाकी न हो जाती तुम्हारा फजल यतीम न होता। और होने वालों, खुदा आपको सलामत रखे। अब ज़ियारतें आना शुरू होंगी। मैं एक शहादत आपके सामने बयान कर रहा हूं, तवज्जो से सुन लीजिए। गरीब ज़हरा के गरीब फर्जंद की शहादत। जब सारी कुर्बानियां हुसैन दे चुका, आमादा है अब रोने पर, तो एक मरतबा का अस्सलाम अलैका या ज़ैनब उम्मे कुलसूम, अस्सलाम अलैका या उम्मे फिज़ा, अस्सलाम अलैका या रुक़ैया। अज़ादारों पर हुसैन का सलाम करना था कि खैमे से रोने की आवाजें बुलंद हुई। दो बीबियों को करार न था, एक जनाब ज़ैनब को, एक जनाब सकीना को। जब जनाब सकीना जमीन पर तड़प रही थी, एक 5 बरस का बच्चा जनाब सकीना के पास आया और कहा, शहजादी क्यों रो रही हो? सकीना ने कहा, बाबा मरने जा रहे हैं, थोड़ी देर में मैं यतीम हो जाऊं। फिर कहा, सकीना क्यों रो रही हो? कहा, बाबा मरने जा रहे हैं, थोड़ी देर में मैं यतीम हो जाऊंगी। जब तीसरी मर्तबा सकीना ने कहा, बाबा मरने जा रहे हैं, थोड़ी देर में मैं यतीम हो जाऊंगी, 5 बरस का बच्चा खड़ा हुआ और कहा, शहजादी आंखों से आंसू पोंछ ले, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे यतीम नहीं होने दूं। बच्चे का तारुफ कराऊं, अब्बास का बेटा है, फजल नाम। ये कह के माँ के खैमे में आया, कहा, अम्मा सकीना क्यों रो रही? कहा, मौला मरने जा रहे हैं। 5 बरस का बच्चा। कहा, अम्मा मौला तो हमारे लश्कर के सरदार, कभी सरदार भी मरने जाते? कहा, बेटा जिस लश्कर का अलमदार मारा जाए उस लश्कर का सरदार भी मरने जाते। कहा, अम्मा हमारा अलमदार मारा गया। कहा, बेटा तेरा बाप अलमदार था, करबला में शहीद हो गया। 5 बरस के बच्चे ने कहा, अम्मा अगर अभी कोई नया अलमदार आ जाए फिर तो मौला नहीं जाएंगे। कहा, बेटा अभी अलमदार कहाँ से आएगा? 5 बरस का बच्चा उठा, अब्बास के खैमे में आया, एक टूटा हुआ नेजा लिया, एक कपड़ा उसके सिरे पे बांधा, दौड़ता हुआ हुसैन के पास आया, अजीब जुमला कहा, मौला तेरे लश्कर का नया अलमदार आ गया। तेरे लश्कर का नया अलमदार आ गया। का बेटा कौन होगा? मौला गुलाम ज़ादा हूं, अब्बास का बेटा। सकीना से वादा करके आया हूं, जब तक मैं जिंदा हूं तुझे यतीम न होने दो। मेरी गुफ्तगू तमाम। ज़हरा का लाल मैदान में आ गया। रोते भी जाइए। इरशाद अली बीमार है, मासूम बच्चों के बाप, पालने वाले सकीना की यतीमी के सदक़े हैं। एजाज अली सकीना की यतीमी के सदक़े उसके बच्चों को दाग़ यतीमी न दीजिए। जो बच्चे यतीम हो जाए तो बड़ी आफतों का शिकार हो जाते हैं। असद अली जाफरी भी बीमार है और मेरे मजमे में जो बीमार है या उनके लवाहिकीन बीमार है। एजाज अली भी बीमार है, जो बीमार है उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। ज़हरा का लाल मैदान में आ गया। बस 2 जुमले सुनिए, आपसे इजाजत चाहूंगा। हालत ये थी कि तलवार नियाम में थी, जीन पे एक कभी इधर लुढ़कते थे कभी उधर। खेमे से एक आवाज आई, हुसैन अगर ऐसे सर कटा दिया तो दुनिया कहेगी कि अली अकबर का लाशा उठाने के बाद, अब्बास के बाजू उठाने के बाद हुसैन में लड़ने की हिम्मत ही नहीं थी। हुसैन एक मर्तबा इनसे कहलवा दे कि तू हैदर कर्रार का बेटा। ज़हरा के पिसर ने तलवार निकाली, फौजी आदा पे हमला किया। अल हफीज अल्लामान की सदाएं बुलंद हुई। एक मर्तबा आसमान से आवाज आई, है नफ्स मुतमईन इरजई इला रब्बिकुम, अपने रब की तरफ वापस आ जा। ज़हरा के लाल ने तलवार नियाम में रख दी, जीन से जमीन पर आ गया। मेरा 12वां इमाम कहता है, मेरा सलाम करबला के उस शहीद पर कि जिसका लाशा न जीन पे था न जमीन पर था। तीरों के दरमियान मुअल्लक हो गया। जैसे ही हुसैन जीन से जमीन पर आए वैसे ही फौज यजीदी वापस चली गई। पिछले साथ ने कहा, सर नहीं लाए? कहा नहीं, हमें हया आई कि अगर क़यामत के दिन हुसैन की मां ने पूछ लिया कि मेरे बेटे का कसूर क्या था तो हम क्या जवाब देंगे? का सर तो कलम करना। तय हुआ कि लश्कर के साथ जानवरों के इलाज के लिए जो नसरानी है उसको तलवार दो और उससे को सर कलम करके ले आ। नसरानी तलवार लेके चला। कहता है सारे रास्ते सोचता जा रहा था, जो खुद जख्मों से चूर है, जो 18 बरस के बेटे का लाशा उठा चुका है, जो अपने भाई के बाजू उठाते हुए कमर तोड़वा चुका है, उसका सर ये कलम क्यों नहीं कर रहे, मुझे क्यों भेज रहे? का ये सोचता हुआ मैं उस गरीब के सराहने पहुंचा। मैंने उसको मुखातिब किया, मैंने कहा, गरीब तुझे उस कड़ियल जवान बेटे का वास्ता जिसके लाशे पे आते हुए तेरी आंखें चली गई थी, रात मैंने एक ख्वाब देखा है, मुझे उसकी ताबीर बता दी। रात हजरत ईसा आए थे, उनके साथ एक बुजुर्ग थे, रीशे मुबारक खून में तर थी। ईसा कह रहे थे, नसरानी कल इससे मुझे शर्मिंदा न करा दो।
ख्वाब की ताबीर बता दे। नसरानी कहता है उसने कोई तवज्जो न दी। फिर मैंने कहा मजलूम, तुझे उस कड़ियल जवान भाई का वास्ता जिसके बाजू उठाते हुए तेरी कमर टूट गई थी, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बता दे। नसरानी कहता है फिर उसने कोई तवज्जो न दी। फिर मैंने कहा गरीब, तुझे उस 6 महीने के बच्चे का वास्ता जिसकी तूने अपनी तलवार से लहद बनाई, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बता दे। नसरानी कहता है उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैं सोच रहा था क्या करूं, सर कलम करूं या वापस चले जाऊं। तो मेरी नजर सामने दर खैमा पे पड़ी। मैंने कहा मजलूम, तुझे उस मस्तूर का वास्ता जो दर खैमा पे खड़ी, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बता दे। नसरानी कहता मैंने इतना कहा था कि उसने अपनी कौनियों पे जोर दिया, गर्दन उठाई और कहा नसरानी वो मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा, मैं उनका नवासा हुसैन हूँ। नसरानी कहता मैंने तलवार उठाई, हमला किया लाखों का लश्कर में अकेला। जब गिरने लगा मैंने फिर मुखातिब किया, मैंने कहा हुसैन कितना गरीब हो गया, सुबह से जो भी गिरता था तू मदद को पहुंचता था, आज मैं जीन से जमीन पर आ रहा हूँ, तू मेरी मदद को भी नहीं आ सकता। कहा उसने फिर गर्दन उठाई और कहा नसरानी घबरा मत, देख जन्नतुल बकी से मेरी माँ आ रही, देख नजफ से मेरा बाबा, खुदा आपको सलामत रखे। नसरानी शहीद हो गया। मेरे नौजवानों, अब लश्कर यजीद से 3 आदमी निकले ज़हरा के लाल को उसका पुरसा देने के लिए। एक ने जुल्फे पकड़ी, माथे पे तीर मारा, एक ने हुसैन की पुश्त पे गुर्ज मारा। अब सुनोगे, तीसरे के पास कुछ भी नहीं था, उसने इतनी शिद्दत के साथ हुसैन के रुखसार से बदतमीजी की, शिद्दत के साथ हुसैन के रुखसार से बदतमीजी की। शिद्दत का अंदाजा कीजिएगा। जैसे ही मुंह पे तमाचा लगा, जन्नतुल बकी की तरफ मुंह किया, कहा माँ इन्हीं रुखसारों के पास लिया करती, अम्मा इन्हीं रुखसारों का प्यार किया करती थी। देख कर हुसैन तमाचे खा रहा है। हराने वालों, जब ये ताबूत आ रही है, बड़े एहतराम के साथ जाना। अभी जिस माँ का जिक्र कर रहे हो, वो माँ इस ताबूत के साथ होगी और तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही होगी। मेरे गरीब के रहने वालों, अठारह शहीदाने बनी हाशिम के ताबूत उठाओ, बीबी ज़हरा तो कि तुझे हुसैन जो पुरसो, काफी देर गुज़री मुझे सैर चाल लगी जुलजना, मुझे हुसैन किथे, आवाज आई बीबी मुंह ते सवार नाए जमीन का पूछे मुझे हुसैन किथे, बीबी मुंह ताई न बोदो, अल्लाह केतरी देर ज़हरा जलाल तीरन जे मथा सवार। 18 शहीदाने बनी हाशिम के ताबूत उठाओ, ज़हरा को दो मिल गई पुरसा, ओ सैयदा को दो मिल गई पुरसा, सीने से अलम लगाओ, मौला मजलूम हुसैन का लाशा है जो ज़ीन पे था न ज़मीन पे था, मजलूम हुसैन का लाशा है जो ज़ीन पे था न ज़मीन पे था, रूहे ज़हरा करती है फुगा मेरे बच्चों को दफनाओ, वाह गुरबत रो कर ताबूत उठाओ, हर चादर का मुहाफिज ज़ैनब की बाजू को कटा कर सोता है, अब्बास तुझे
زینب کی بازو کو کٹا کر سوتا ہے، کہتی تھی سکینہ بابا سے، بابا ذرا جلدی جاؤ، او میرے چاچا کو لے آؤ۔ 18 شہیدان بنی ہاشم کے تابوت اٹھاؤ، ارمان تھا جس کی شادی کا وہ اکبر دولہا بن نہ سکا، ارمان تھا جس کی شادی کا وہ اکبر دولہا بن نہ سکا، اور سغرا ہے مدینے میں روتی، سغرا ہے مدینے میں روتی، اور زینب کو ہوش ملا، رو کر تابوت اٹھاؤ۔ 18 شہیدان بنی ہاشم کے تابوت اٹھاؤ، ارمان تھا جس کی شادی کا وہ اکبر دولہا بن نہ سکا، ارمان تھا جس کی شادی کا وہ اکبر دولہا بن نہ سکا، وہ سغرا ہے مدینے میں روتی، زینب کو ہوش ملا، ہائے غربت رو کر تابوت اٹھاؤ، اور یہ لاشا ہے اس دولہے کا جو بن میں ہے پامال ہوا، یہ لاشا ہے ایک دولہے کا جو بن میں ہے پامال ہوا، ماتم کرو قاسم دولہے کا، ماتم کرو قاسم دولہے کا، غم مل کے سارے مناؤ، رو کر تابوت اٹھاؤ، سیر زاراتوں کے تجن بچڑن جو پرسانی آیا، بی بی اسانج قبر میں بخشش جو ایوئی ذریعہ، تجھے بچڑن جو غم سین اسانج مکان قبول فرما، اور ارمان تھا جس کی شادی کا وہ اکبر دولہا بن نہ سکا، سغرا ہے مدینے میں روتی، اور زینب کو ہوش ملا، رو کر تابوت اٹھاؤ، ارے اون محمد ہے لوگوں جن پر رونے والا ہی نہ تھا، ماں وصیت کرتی رہی اون محمد تواج زندگی میں، اکبر جے جسم تے خراش اچی وئی کھیر نہ بچ دیسا، یہ اون محمد ہے لوگوں جن پر رونے والا ہی نہ تھا، اور دونوں سے مائیں کہتی تھی، دونوں سے مائیں کہتی تھی، اکبر پہ واری جاؤ، رو کر تابوت اٹھاؤ، 18 شہیدان بنی ہاشم کے تابوت اٹھاؤ، ارے یہ جھولا ہے علی
اصغر کا چھما میں جس کو تیر لگا روئی مجھ سین رباب وائدو کو اصغر تو کے پسے اٹھے تھک وائدو تھی گیا جیسی جیری ہو دس نہ تھدو پانی تھی دس نہ چھاتے بھی دس یہ جھولا ہے علی اصغر کا چھما میں جس کو تیر لگا یہ جھولا ہے اور یہ جھولا ہے علی اصغر کا چھما میں جس کو تیر لگا ماں دھوپ میں بیٹھی روتی ہے حضرت بی بی معصوم سکینہ بنت مولا حسین علیہ السلام بتاری 7 سفر ऐं 8 सफ़र जी दरमियानी शब 7 ऐं 8 सफ़र जी दरमियानी शब 8 बजे बमकाम दरगाह से नूर शाह बुखारी गोट हुसैन खान लगारी ज़िलो टंडो मोहम्मद खान में मुकर कई हुए खतीब अलमुम क़िबला सईद अब्सार हुसैन ने फरमाया कि भाई भतीजे बेटे हैं मजलूम हुसैन के मक़तल में अरे ये सब भाई भतीजे मातमिन के गुजारिशात हल्को ठाए करे मातमगन या हुसैन 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 हुसैन या हुसैन या हुसैन या पीछे हजरात से गुजारिशात बोली कन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा हो या रब कोई मासूमा जिंदा में न तन्हा